All right, welcome back. आपका फिर से स्वागत है। We will go to chapter 5. हम पाठ 5 में जाएंगे। So, in the entire course, this is the chapter of highest importance. ये पूरे पाठ्यक्रम में जो है ये जो पाठ 5वां पाठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay, more than any other chapter. किसी और पाठ से ज्यादा। Now we have understood about Satan and demons. अभी हम जो है शैतान और दुष्ट आत्मा के बारे में समझ गए हैं। But as believers, we have to understand the victory of the cross. और विश्वासी होने के नाते क्रूस के विजय के बारे में जानना समझना बहुत ही जरूरी है। This is the most important thing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It helps us overcome every challenge and every difficulty that the enemy may put on us. तो ये जो है हमें शैतान हमारे ऊपर जो चुनौतियां और जो कठिनाइयों को डालता है उसको सामना करने के लिए हमें सहायता करेगी। So let's understand that Satan is defeated. आइए इस बात को हम समझें कि शैतान जो है हारा हुआ है। So in the battle that you and I are fighting, we are fighting against a defeated enemy. जो युद्ध लड़ाई जो आप और मैं कर रहे हैं वो जो है उसके विरुद्ध में कर रहे हैं, जो हारा हुआ शत्रु है उसके विरुद्ध में हम लड़ रहे हैं। Jesus has defeated Satan. यीशु ने शैतान को हराया है। So we will look at some of the words that have been used with regard to the victory of Jesus. यीशु के विजय के बारे में कुछ वचन शब्द दिए गए उसके बारे में हम देखेंगे। First, we are going to read Genesis chapter 3 and verse 15. सबसे पहले जो हमें उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। So you have to read quickly. I'll call out the verse and you have to read quickly. मैं वचन बताऊंगी, आपको जल्दी से उसे पढ़ना है। उत्पत्ति 3:15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। Okay. Yes. All right. In English, who would like to read it in English? माइक ले लीजिए। Mike. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her. He will crush your head, and you will strike her heel. Okay. So it says, I will put enmity between you is serpent, and the woman, between your seed and her seed. So who is the woman's seed here? स्त्री का जो वंश बताया गया कौन है? Yes, Jesus Christ. यीशु मसीह है। Okay. So what will Jesus do? Yes. यीशु मसीह क्या करेंगे? He shall bruise your head. वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। And we know that this is what Jesus did on the cross. और हम जानते हैं कि यही यीशु मसीह क्रूस पर किए हैं। See, if anybody wants to kill a snake, यदि कोई सांप को मारना चाहते हैं, how do we kill it? हम कैसे उसको मारते हैं? The tail, will you go cut the tail? क्या आप जाके उसका पूंछ पर मारेंगे? Okay, stick, but where? stick लेके Which part कहाँ of the मारेंगे? snake will you destroy? स्टिक लेके Very कहाँ पर good. मारेंगे? Very good. सर So, पर मारेंगे। if we want to kill the snake, you have to hit the head. यदि आप सांप को मारना चाहते हैं तो आपको जो है उसके सर पर मारना है। And the verse says, Jesus will bruise the head, crush the head. और वचन बता रहे हैं कि यीशु जो है उसका सिर को कुचलेगा। So what do you think he wanted to do to the snake? तो आपको क्या लगता है कि वो सर्प के साथ क्या करना चाहते हैं? Fully kill the snake. पूरी तरह से उसे मार डालना। Who is the snake? Figurative language here. Who is the snake? या सर्प जो बताया किसके Satan. बारे में? शैतान के बारे में। So in the first book of the Bible, God is prophesying that Jesus will come and destroy Satan. तो बाइबल के पहला पुस्तक उत्पत्ति में बताया है कि यीशु आएंगे शैतान को नाश करने के लिए। So Jesus has crushed
Satan. तो यीशु ने शैतान को कुचल दिए। How many of you want to say amen? You can say. आप में से Amen. Okay, praise the Lord. Now, next, we अगला, see that Jesus has expelled Satan. तो दूसरा हम देखते हैं कि यीशु जो है शैतान को निकाल दिया। John 12:31 to 33. यूहन्ना 12 अध्याय का 21 से लेकर 33 तक के वचन। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out, and I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. He said this to show the kind of death he was going to die. Amen. So Jesus is talking about his death on the cross, यीशु जो है उनका क्रूस पर मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, and he says that when I am lifted up on the cross, और वो बता रहे हैं कि जब मैं क्रूस पर उठा लिया जाऊंगा then what will happen? तो क्या होगा, The ruler of this world will be cast out. और इस संसार का जो न्याय है वो जो है निकाल दिया जाएगा। So ruler of the world referring to Satan. यहाँ जो संसार का न्याय बताया गया वो जो है शैतान के बारे में। So Jesus is saying that Satan will be cast out. तो यीशु बता रहे हैं कि शैतान जो है निकाल दिया जाएगा। We could also say that Satan will be expelled. तो हम ये बता सकते हैं कि उसको जो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा जगह से। So expelled from where? कहाँ से? Satan is no longer enthroned. अभी जो शैतान जो है आगे को उच्च सिंहासन पर नहीं है। We all saw that God gave man the dominion, but because of sin, Satan came into the picture. तो हमने सब देखा कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अधिकार दिए थे, लेकिन पाप के कारण जो है शैतान को अधिकार मिल गया। But when Jesus was crucified on the cross, Satan was expelled. लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरे तब शैतान को उस सिंहासन से हटा दिया गया। So he no longer has authority in our lives. इसलिए अभी शैतान को हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। So two things we have seen. दो चीज हमने देखे, Satan is crushed. शैतान जो है कुचल दिया गया है, Satan is expelled. शैतान को निकाल दिया गया है। Now let us read John 16 verses 8 to 11. आइए हम पढ़े यूहन्ना 16 के 8 से लेकर 11 तक का वह वचन। आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाएगा। And about judgment, because the prince of this world now stand condemned, I have so much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He'll speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me, because it is from me that he will receive what he will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said to the Spirit will come from me, what he will make known to you. Okay. So we notice here that Satan has been condemned. यहाँ हम देख रहे हैं कि शैतान जो है दोषी ठहराया गया। Right? So we are now looking at another thing that Jesus has done. अभी हम यीशु मसीह जो किए हैं उसमें के दूसरे और एक आग्रह कार्य को हम देख रहे हैं। So we all know in a court, if an accusation is put against somebody, हम जानते हैं कि जब कोर्ट में जो है किसी के विरुद्ध में कुछ अपराध बताया गया है, they'll fight the case. वो जो है अपना लड़ाई को लड़ेंगे। And if the person is condemned, यदि वो दोषी ठहराया गया then they will have to take up the punishment. तब जो है उनको दंड मिलेगी। So in the same way, we notice that Jesus has condemned Satan. तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यीशु जो है शैतान को दंड दिए हैं। Okay, so again, it's another way of saying that Satan is defeated. तो ये
शैतान हराया गया कहने के लिए एक और एक अलग तरीका है। Let's read Colossians chapter 1 verses 14 and 15. दूसरा कुलुस्सी दूसरा अध्याय कुलुस्सी दूसरा अध्याय का 14 और 14 and 15। 15. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Amen. We are guilty of many wrong things that are against God's law, but Christ did on the cross on our behalf. He paid the debit of our sins. It is like he has destroyed the list of all the debts that we should pay to God. On the cross, Christ took away the power of the bad spirits that have authority to rule people. He showed clearly that he himself has won against them. Now everyone can see that those bad spirits have no power. Amen. So over here we see Jesus triumphing through the cross, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है क्रूस के द्वारा जयवंत हुए हैं and he has disarmed principalities and powers. और यीशु मसीह जो है प्रधानों और अधिकारियों को निरस्त कर दिया And it says he made a public spectacle of them. और यहाँ बताया जा रहा है कि उनका उसने कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। So we have to understand how they did war in the old times. तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि पुराने समय में वे कैसे युद्ध करते थे। So if one king is victorious, यदि एक राजा जीत गया है what he'll do is he will take away the arms of the other kingdom. तो वो जीता हुआ वाला राजा जो है हारा वाला राजा से उसके सारे जो हथियार है छीन लेते हैं। So all the weapons that they used those days. उन दिनों में जो हथियार वो इस्तेमाल करते थे I don't know what weapons they used. I'm So- just saying. मुझे नहीं पता है वो कौन से हथियार इस्तेमाल करते थे, बस बता रही हूँ। Maybe, their guns, whatever, they just take it. तो जो भी वो इस्तेमाल करते थे उसे ये जीता वाला राजा ले लेता था। And what they would do is they will go for a parade. तो वो जो है एक जुनून जैसे जाते थे, जुलूस लेकर जाते थे। So the victorious king will show off his victory. तो ये जीता हुआ राजा जो है अपना विजय को दर्शाता था, दिखाता था। And they will also take the defeated people with them and show how, like how defeated they are. तो हारा वाले लोगों को भी अपने साथ लेके जाता था, ये दिखा देखो किस प्रकार से हार गए हैं। So it's a big shame for the kingdom that lost. तो जो राज्य हार गए हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात रहती है वो। So that is the language that Paul is using. तो उस प्रकार के उस भाषा को ही पौलुस जो है यहाँ इन वचनों में बता रहा है। And he's saying Jesus has made a public spectacle of Satan. तो पौलुस बता रहा है कि यीशु जो है उनका शैतान का कुल्लम तमाशा बनाया And he has disarmed the demonic spirits, तो उसने दुष्ट आत्माओं को जो है निरस्त कर दिया, disarmed Satan. शैतान को निरस्त कर दिए। See, if the enemy does not have weapons, should I be afraid of him? शत्रु के पास उसके पास हथियार नहीं है तो क्या मुझे डरना चाहिए? No, नहीं, because he is disarmed. क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है, निरस्त है वो। So Jesus has disarmed Satan. तो यीशु ने शैतान को निरस्त किए। In Hebrews chapter 2 verses 14 and 15, इब्रानियों दूसरा अध्याय का 14 और 15 वचन no need to read it. पढ़ने की जरूरत नहीं है। We see that Jesus has destroyed Satan. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को नाश कर दिए हैं। And in Matthew 28, और मत्ती 28 पर where we see the Great Commission, हमारे लिए महान आज्ञा दी जाती है। Jesus says that all authority in heaven and earth is mine. तो यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग आकाश और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरी है, And I give you. मैं तुम्हें देता हूँ। Now tell me, if all authority is with Jesus, तो सारे अधिकार जो यीशु की थी, how much authority is there with Satan? तो शैतान के हाथ में कितना अधिकार है? 0. शून्य। Maths, right? If all is with Jesus, 0 with Satan. सारे अधिकार यीशु मसीह के पास है तो शैतान के पास शून्य है। So we can see that Satan has been made powerless. तो हम देखते हैं कि शैतान जो है
शक्तिहीन है। So my question is, मेरा सवाल, why are believers so afraid of Satan? तो विश्वासी लोग शैतान के लिए इतना क्यों डरे हुए हैं? Lack of knowledge. क्योंकि उनका ज्ञान के कमी के कारण। Jesus has defeated Satan in every possible way. यीशु शैतान को हर एक तरीके से हरा दिए हैं। So we don't have to be afraid of Satan. इसीलिए हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। Amen? आमीन। So as believers, we have to walk with the victory that Jesus has given us on the cross. तो विश्वासी होने के नाते हमें जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जो विजय दिए, उस विजय पर चलना है। You know, the Bible says that the victory that Jesus has on Satan is complete. तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो शैतान पर जो विजय प्राप्त किए हैं, वो पूर्ण विजय है। It's not like, okay, he got some victory, but little more battle has to be won. ये ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने थोड़ा सा विजय प्राप्त किए और थोड़ा बहुत लड़ाई भी बाकी है। He has given us complete victory. यीशु मसीह हमें जो है पूर्ण विजय को दिए हैं। That also means Satan is completely defeated. इसका मतलब ये भी होता है कि शैतान जो है पूर्ण रीति से हरा हुआ है। So with that, Jesus is telling us, now you go. इसीलिए यीशु अभी कह रहे हैं कि अभी तुम जाओ। And he told his disciples, we see in Luke 10:19, he says, you will trample on serpents and scorpions. इसीलिए लूका 10:19 में यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम जो है सांपों और बिच्छुओं को रौंदेगे। So that means we as believers will overcome every demon. इसके मतलब जो है हम विश्वासी होने के नाते हम हर एक शैतान पर विजयी प्राप्त करेंगे। So we learned many methods of the devil. हमने शैतान के कई सारे तरीकों के बारे में सीखे हैं। No matter which method demons use against us, we can overcome. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे विरोध में कौन से तरीके को इस्तेमाल करेगा, हम जो है हर एक तरीकों पर विजय प्राप्त करेंगे। So, you know, believers will say, okay, some demons are very bad. तो विश्वासी ऐसा कह सकते हैं कि कुछ शैतान जो है बहुत ही दुष्ट है, Some demons are very strong. कुछ शैतान जो है बहुत ही बलवान है। Then what about them? तो उसके बारे में क्या है? So, within the demonic world, some demons can be in the higher rank. तो जो शैतान के जो राज्य है उसमें जो है कुछ शैतान जो है उच्च स्तर के हो सकते हैं। So, can the believer face that so-called big demon? क्या एक विश्वासी जो जैसे बोला जाता है कि बड़ा शैतान है, उस बड़े शैतान का सामना करेंगे? It is at very high level. वो क्योंकि बहुत ही उच्च स्तर पर है। Can we face or not? क्या हम उसका सामना Yes. करेंगे या नहीं? We can, because in Ephesians chapter 2, the Bible says we are seated with Christ in the heavenly places. शैतान कितना भी बड़ा हो तो हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि इफिसियों 2 अध्याय में बताया गया कि हम जो है यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। Where is heaven? स्वर्ग कहाँ है? Very high. बहुत ही ऊंचे पर है। So, wherever, however high the demon is, heaven is higher. तो जहाँ कहीं भी जितनी भी ऊंचाई पे शैतान रहे, उससे और ऊंचा है स्वर्ग। And where are you and I sitting? आप और मैं कहाँ बैठे हैं? APC Bible College. APC बाइबल कॉलेज में बैठे हैं, Or we are sitting at home. या तो घर पर Online. बैठे हैं जो ऑनलाइन से जुड़े हैं। But spiritually, we are sitting in heaven. लेकिन आत्मिक तौर पर हम जो है स्वर्ग में बैठे हैं। Physically, we are sitting here. शारीरिक रूप से हम यहाँ बैठे हैं, Spiritually, we are seated with Christ in the heavenly places. आत्मा में जो है हम जो यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। So just imagine with me. मेरे साथ इसको कल्पना कीजिए। Jesus is sitting. यीशु बैठे हैं, You are sitting next to, you are sitting with Jesus. आप यीशु के साथ बैठे हैं। Where are the demons now? हम हमारा पैर कहाँ है? Where are the demons? शैतान कहाँ है अभी? Where? Tell me. कहाँ है? Under my feet. मेरे पैरों के नीचे है। Okay.
below the feet of Jesus, obviously, but also because I'm sitting with Jesus, every demon is below. हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पैरों तले हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के बगल में बैठे हैं, इसलिए हर एक शैतान के जो है हमारे पैरों के नीचे है। So it's a way of the Bible teaching us that we have been given authority where every demon is defeated. तो बाइबल की सिखाने की तरीका है कि जो हर एक शैतान जो है हारा हुआ है, And you and I can exercise our authority and enforce that victory in our everyday lives. तो आप और मैं जो है उस अधिकार का इस्तेमाल कर कर उस विजय का हमारे प्रतिदिन के जीवन में लागू कर सकते हैं। Now, when believers involve in deliverance, तो जब विश्वासी जो है जानबूझकर करने के कार्य में लगते हैं, when they cast out demons, जब वो शैतान को निकालते हैं, sometimes they feel that demons can attack them. तो वैसे जो छुटकारे के कार्य करते हुए जो है, तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि जो शैतान जो है पलटा वार करेगा। So have you heard this? क्या आपने सुना है? Where if you cast a demon out, then maybe that demon will come and do something in your family. तो ऐसा आपने सुना है क्या? आप यदि शैतान को निकाल दोगे तो वो शैतान आकर आपके परिवार में कुछ करेगा। So because of such a thought process, believers don't want to engage in deliverance ministry. तो इस प्रकार का विचार होने के कारण जो है विश्वासी लोग जो है ये छुटकारे के सेवकाई में जाना नहीं चाहते हैं। Okay, but we have to understand from the Bible that Jesus has defeated Satan completely. हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह शैतान को पूर्ण रीति से हरा दिए हैं। We are protected completely. हम जो है पूर्ण रीति से सुरक्षित रखे गए हैं। So when I cast out a demon, I don't have to worry इसलिए जब मैं शैतान को निकालूं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है that I will get attacked. कि मुझे पलटवार हो जाएगी। Okay, so please know that there is no need to worry that we will get like a backlash or the demons will attack us now. तो हमें इसलिए इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये जाने कि जब हम शैतान को निकालते हैं तो शैतान जो है हम पर पलटवार करेगा, इसका चिंता ना करें। In Luke 10:19, लूका 10:19 में Jesus said, "You will trample the serpents and scorpions, यीशु ने कहा कि तुम बिच्छुओं और सांपों को रौंदोगे and nothing by any means shall harm you." और किसी वस्तु से तुम्हारा कुछ भी हानि ना होगी। That means we are fully protected इसके मतलब जो है हम पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखे गए हैं and we don't have to worry of any like an attack again by the demons. इसलिए हमें इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि शैतान जो है हम पर हमला कर देगा। So again in 1 John chapter 5 verse 18, the Bible says that the evil one cannot touch us. तो फिर से बाइबल बताती है कि पहला यूहन्ना के 5वां अध्याय के 18वां वचन में कि दुष्ट हमें छू नहीं सकता है। So when we are walking righteously, the evil one cannot touch us. जब हम धर्मी रूप से चलते हैं तो दुष्ट जो हमें छू नहीं सकता है। We also have Psalm 91 which says that we who dwell in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. तो हम भजन 91 में भी पढ़ते हैं कि जो हम परम प्रधान के जो छाया में बने रहते हैं, हम जो है उसके छाया में निवास टिके रहेंगे करके हम पढ़ते हैं। So all these scriptures are telling us again and again that God is protecting us. तो ये सारे वचन हमें बार बार इस बात को बता रही है कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रख रहे हैं। So don't be afraid that the demons can do anything to you. तो इसलिए इस बात को चिंता ना करें कि शैतान आपके लिए कुछ कर सकता है करके। The Satan and demons do not have any legal rights on us. शैतान और उसका दुष्ट आत्माओं को किसी भी कानूनन हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। You remember we talked about open doors? क्या आपको याद है हमने खुले दरवाजे के बारे में बात किए थे? So open doors and legal rights. जो खुला दरवाजा और कानूनी जो उसका हक है, अधिकार है। So Satan cannot enter without a legal right. शैतान जो है कानूनी अधिकार बिना प्रवेश नहीं कर सकता So है। if I give myself to the devil, I've given the legal right for the devil to do things in me. तो यदि मैं अपने आप को शैतान के हाथ में दे दूं तो मैं जो है शैतान को कानूनी अधिकार दे रही हूँ
मेरे अंदर कार्य करने के So लिए। there are many people who do such things. कई सारे ऐसे लोग हैं इस प्रकार के कार्य करते हैं, That we as believers have given ourselves to Jesus. लेकिन हम विश्वासी होने के नाते अपने आप को यीशु को दिए हैं। And the Bible says that we are redeemed. और बाइबल हमें बताती है कि हम जो है छुड़ाए गए हैं। So if we are redeemed, we now belong to God's kingdom. यदि आप छुटकारे पाए हो तो आप जो है परमेश्वर के राज्य के हो। So if we are part of God's kingdom, we are not part of the devil's kingdom. यदि हम परमेश्वर के राज्य के भाग में हैं तो हम जो है शैतान के अंधकार के राज्य के भाग नहीं है। And so he cannot do anything to us इसलिए वो हमारे साथ हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, because he does not have legal rights over us. इसलिए क्योंकि उसको हमारा ऊपर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। Okay, so please know that because we are redeemed, we no longer belong to the kingdom of Satan. इसलिए कृपया इस बात को जानिए कि हम छुड़ाए गए, इसलिए हम जो है अंधकार के राज्य के नहीं हैं। And Satan does not have any legal rights on us. इस शैतान को जो है हमारे ऊपर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। So I think you understood, so I won't give any further examples on this. तो मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं, इसके आगे इसके लिए उदाहरण की जरूरत नहीं है। There is one more portion here which talks about court cases. और एक बात यह बताती है कि जो कचहरी के मामले या तो कोर्ट केस। So court case means there are some teachings which say that every time we go through a problem, Satan is accusing us in heaven. तो ऐसा एक शिक्षा चल रही है कि मतलब जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो शैतान जाके हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है करके। So it's like in the court of heaven, Satan goes and he's putting an accusation against me. तो ये ऐसा है कि मतलब स्वर्ग के जो कोर्ट है वहां जाकर शैतान जाकर मेरे विरुद्ध में आरोप लगा रहा है। And Jesus, my advocate, fights for me. और यीशु मेरा वकील है, मेरे लिए लड़ रहे हैं। And Jesus wins the case. और यीशु उस मामले को जीत जाते हैं। So when Jesus wins the case, I overcome my problem on earth. जब यीशु अपना इस मुकदमे को जीत जाते हैं तो मेरे अपने समस्या में मैं विजय प्राप्त करती हूँ। So there is some teaching like this about court cases. तो यहाँ जो मुकदमे के बारे में जो है ऐसा कुछ शिक्षा है। But we have to understand that even though the Bible says Jesus is our advocate, it doesn't mean he's sitting there and fighting cases. तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि बाइबल भले ही बताती है कि यीशु हमारा वकील है, इसके मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह वहां बैठकर हमारी मुकदमे को लड़ रहा है। Because he already fought that battle on the cross. क्योंकि इस मुकदमे को पहले से क्रूस पर वो लड़ चुका है। And he has already redeemed us. वो पहले से हमें छुड़ा चुका है। He represents us. वो हमारा प्रतिनिधि बना है, But he is not sitting there and fighting, one case after the other. लेकिन वो वहां बैठकर एक के बाद एक मुकदमे नहीं लड़ रहा है। Okay. So we have received our victory through his finished work on the cross. हमने अपना जो विजय को जो है यीशु मसीह के पूर्ण क्रूस पर पूर्ण किए गए कार्य के द्वारा प्राप्त किए हैं। And also remember, Satan is a finite being. और इस बात को भी याद रखें कि शैतान जो है सीमित है। He cannot be in every place all the time. शैतान जो है हर जगह में हर समय नहीं रह सकता है। And if he has to put a court case on every single one of us, यदि वो हम प्रत्येक के ऊपर मुकदमे को डाला है he will be stuck there only. तो उसको वहीं रहना होगा। Because there are so many human beings, so many court case there only. तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं, तो शैतान को वहीं कोर्ट पर ही रहना होगा। So it is not possible for him to be fighting cases there and also do his work here. तो इससे वो संभव नहीं है कि वहां भी मुकदमा लड़े और यहाँ धरती पर भी उसके कार्य को करें। So we have to understand that this teaching about court cases doesn't fit very accurately as far as the Bible is concerned. तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि ये जो मुकदमे के या कोर्ट केस के बारे में जो शिक्षा दी जा रही है, ये जो है बाइबल के आधार पर सही नहीं है। Okay, so now maybe we will take
time for some questions. आइए अभी थोड़ा सा समय हम सवालों के लिए ले सकते हैं. Now you heard lot of things. If you have any questions, please do ask. Yes, brother. यदि आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. एक दिन हमारे गांव गांव पे नजीक में एक मीटिंग कंडक्ट किया मैं. उधर क्या है, हमारा मेरा छोटे भाई साउंड सिस्टम ऑपरेटिंग करता हूँ. मीटिंग हो गया बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सबको. उसके बाद क्या है, हीलिंग्स हो रहा. बाद में क्या उसको पेड़ पे वो खाना नहीं खा रहा. कौन, ये हमारा छोटा भाई है ना, वो खाना नहीं खा रहा. क्या हुआ तेरे को बोले तो पूछे तो वो क्या बोल रहा है मेरे को, 10 मिनट के पहले मेरे को पेट में दर्द हो रहा, ऐसा कुछ बोल रहा. ऐसा भी अपना कभी भी डेविल स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स इज अपना बाजू वाले को नहीं तो ऐसा पकड़ सकता है क्या? Okay. वो काम पे कुछ काम पे गए थे. हाँ. उसके बाद उसको प्रार्थना किया मैं, फ्री हो गया उन्हें. Yeah. So can the demon spirit that is coming out of one person go and inhabit another person? Right. So answer is yes. इसका जवाब हाँ. So if people are not consecrated to God, and if they have any open door like how we discussed, it is a possibility. यदि लोग जो है परमेश्वर को अपने आप को नहीं दिए हैं या तो कोई खुला दरवाजा रख दिए तो संभव है. Yeah. So it can happen. यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब अब दुश्मन पलटवार नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग तो ये समझ गए, लेकिन हमारे मम्मी पापा ये नहीं समझते. जब हम कहेंगे कि वो पड़ोसी बीमार है, हम उनके लिए प्रेयर करते हैं, तो मम्मी पापा कहेंगे नहीं जाना है. तो उनको कैसे समझाएं या इस सिचुएशन में हम क्या करें? Okay, so when like they want to go and pray, but parents are saying don't go. You pray from home. Is that possible? Pray from home. घर के लिए प्रार्थना करें. There's no distance in prayer, right? So even if you pray from home, it can be effective. मतलब आपके जाके प्रार्थना करने के बजाय आप घर पर रहकर प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सब. So so if you want to go, you will have to convince your parents. तो यदि आपको जाना है तो आपको अपना मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा. Oh, that you only know how to do. तो कैसा करना है आप ही जानते हैं, उनको कैसे मनाएं. But if they're not willing to let you go, you can even pray at home and you can send somebody. Okay. Yeah, I understand what you're saying. But yeah, it's tough situation, no? Your parents, otherwise you'll end up fighting with them. तो ये तो मुश्किल है. अब ऐसा होगा कि उनसे लड़के आपको करना होगा ऐसे. Yeah, so you ask Holy Spirit for wisdom. आप पवित्र आत्मा से मांगे बुद्धि दें. ये चालू नहीं हो रहा, दूसरा ले लो. होगा. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला ना कि जब हम किसी के लिए प्रेयर करते तो ये ना सोचे कि हमारे घर पे कुछ होगा. तो एक मतलब पास्टर थे, तो किसी और के घर पे दुष्ट आत्मा हो गया था, तो
वो शायद वो गए थे वहां पे, तो जब वो गए वहां पे जब गए वो प्रेयर करने के लिए, तो जहाँ दुष्ट आत्मा था जिनके घर में, तो उनके घर में जब वो प्रेयर कर रहे थे तो उनके घर पे वार हो रहा था, प्लेट गिर रहा था, फैन चलते चलते गिर रहा था, और मतलब बहुत लोग बता रहे थे कि छत पे टेरेस पे शैतान घूम रहा है, बहुत सारी बातें ऐसे उन लोग ने बता रहे थे उन्हें। तो जब अंकल ने हम लोगों को भी बताया था कि जब मैं प्रेयर कर रहा था तो Okay, हम everyone, please listen. Somebody is talking. Please listen to her. उनका सवाल को ध्यान दे, उनको सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो पास्टर अंकल जो बता रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे भी जब मैं यहाँ पे प्रेयर कर रहा था, जब मैं किसी और के व्यक्ति के लिए प्रेयर कर रहा था, तो मेरे घर पे भी जैसे कि उनके घर पे भी बहुत शैतान उन्हें परेशान कर रहा था कि वो प्रेयर ना करे अगला व्यक्ति के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ? So she's asking, like, somebody cast out a demon spirit, and in that person's home there was some supernatural or activities that took place. Why did it happen? Okay, so the answer could be fear, सवाल ये हो सकता है कि उनका डर। जवाब, because we see in the book of Job says, whatever I fear came upon me. क्योंकि अय्यूब के किताब में हम देखते हैं कि जो जिस बात के लिए मैं डरता था वही मेरे साथ हुआ है। Fear is an open door. भय जो है खुला दरवाजा है। So if I cast out a demon यदि मैं एक दुष्ट आत्मा को निकालती हूँ and then I am afraid और मैं डरती हूँ, that something will happen, something will happen, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, something will happen. तो जरूर कुछ होगा। But so that's the point. Don't be afraid, because we have just seen so many scriptures that say that God protects us completely. इसलिए जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे वचनों को देखे कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। If we are afraid, it will happen. तो हम अगर डरेंगे तो होगा। बट मैम वो जो पास्टर थे तो वो डरे नहीं थे, बट जो उनके कलीसिया लोग थे तो वो लोग हम लोग को बता रहे थे कि उनका विश्वास था, वो अपनी फैमिली का चिंता परमेश्वर पे डाल दिए थे कि जब मैं यहाँ पे अगर परमेश्वर के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे फेवर में हमेशा खड़ा रहता Okay, so even if such things happen, he can just go pray for his home. That's all, nothing to be afraid. तो ऐसा होता भी तो हम जाकर प्रार्थना करें। Just go and pray for your home. You know, sometimes what people do is they will lay hands on the floor and pray, or take some water, pray for the water, and just put the water on your home. You can do anything you want to, and just pray for your home and trust that God will protect it. तो ऐसा होता तो अब जाकर आप कुछ लोग करते हैं कि फर्श पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, या तो पानी को प्रार्थना करके छिड़क देते हैं पूरा घर पर। तो आप अपना घर के सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, परमेश्वर आपका घर को सुरक्षित रखेंगे। I think somebody is waiting, brother. We'll give them chance then. When we see Jesus completely defeated Satan and is completely powerless, but still he is existing. So when will we completely get rid of him? Yeah, when will he not exist on earth? Yeah. Okay. उनका सवाल है कि आप तो बोले कि शैतान पूरी तरह से हरा हुआ है, तो अभी भी यहाँ पृथ्वी पर है, पूरी रीति से पृथ्वी से कब उसको निकाल दिया जाएगा? So in the Bible, we see that when Jesus comes in the second coming, बाइबल में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपना दूसरा आगमन में आएंगे, there will be a war. It's called the war of Armageddon. तो वो एक युद्ध के बारे में बताया गया कि अरमगदोन लड़ाई होगी। So when that war happens, Satan and his demons will be they will temporarily be shut away. तो उस युद्ध को होते समय जो है थोड़े समय के लिए जो है अस्थायी रूप से उन्हें अलग किया जाएगा। The Bible says Jesus will rule on the same earth where you and I are, same earth. He will rule on this earth for 1000 years. बाइबल हमें बताती है कि इसी पृथ्वी पर जिसमें हम है, उसी पृथ्वी पर यीशु जो है 1000 साल के लिए शासन करेगा। At the end of those 1000 years, again Satan will be opened. और उस 1000 साल के अंत में जो है फिर से शैतान को खोल दिया जाएगा। And there are verses in the Bible that say that
he will continue his deceptive activities. और बाइबल में ऐसे वचन दिए गए हैं कि उसके बाद भी शैतान जो धोखा देने वाले उस कार्य को लगातार जारी रखेगा। But at the end of those 1,000 years is when finally Satan will be bound, judged, bound, and cast into the lake of fire. और 1000 साल के after that, अंत में ही जो है उस पर न्याय की जाएगी, बांधकर आग की झील में फेंक दिया जाएगा। So that is the way it is going to take place. तो इसी प्रकार से है होने जा रहा है। Yes, brother. एक दिन क्या हुआ मेरे को, एक आदमी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ घर में, रात में ऐसा वो ज्यादा ड्रिंकिंग करता है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो रात में प्रार्थना करके उसके लिए सो गया मैं। वो क्या है, वो स्पिरिट आके मेरे से लड़ रहा होने रात में। तो कहीं को प्रार्थना किया मेरे लिए, तेरे काम देख ले तुम बोल के ऐसा लड़ रहा तो मैं भी उससे लड़ रहा हूँ। मैं क्या है मेरे को समझ नहीं आया। सुबह वो रात स्वप्न में दोनों लड़के दोनों ऐसा मार रहा हूँ, मैं उसको मार रहा हूँ, वो मेरे को मार रहा, ऐसा लड़े हो गया। सुबह उठने के बाद मेरा मुंह पूरा दर्द हो रहा, क्या समझ नहीं आया मेरे को। मैं सोच रहा हूँ अरे क्या हो गया बोल के, रात में उससे लड़ा ना मैं, इसलिए ऐसा हुआ क्या। वो मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब उसमें डिस्टर्ब हो गया। उसका क्या है वो, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा मेरा। कभी ऐसा नहीं लड़ सकता है वो। So see, spirits can intimidate us, जो आत्मा जो है हमें धमका सकती है। and again, I'm saying the same thing again. I'm just saying, don't be afraid. तो बार बार मैं इसी बात को बता रही हूँ कि बस डरे ना आप। They will try to, wrestle, argue, lot of things they'll try to do. Don't be afraid. Every time declare the victory of Jesus. They have to leave. That's all. वो हमारे साथ विरोध करने, हमसे लड़ने, वाद विवाद करना कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार परमेश्वर का वचन घोषणा करके ही उस विजय पर चले। That's मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए प्रेयर किया जाता है तो वो चंगा हो जाता है, फिर बाद में जब वो चंगा हो जाता है फिर बीमार हो जाता है, तो क्या कारण है कि क्या परमेश्वर पूर्ण रीति से चंगाई नहीं देते क्या? मेरा ये सवाल। okay. Yeah. So she's asking, when somebody is sick, we pray for them, they get healed, but after some time again they are sick. So why is it like that? So both in the case of healing and deliverance, we have to safeguard. चंगाई और छुटकारे में जो है हमको अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। So the person who is healed has to continue in faith. That's okay. जिस व्यक्ति की चंगाई हुई है उसको जो है लगातार विश्वास में बने रहने की जरूरत है। Okay, so that's the thing. Like once they have healing, they need to confess the word of God and continue to believe, and they have to keep their healing. एक बार उनकी चंगाई होने के बाद जो है उन्हें लगातार विश्वास करना है, परमेश्वर का वचन का घोषणा करना है और उस चंगाई में विश्वास करना है। Same way, those who are delivered as well. इसी प्रकार से जिनका छुटकारा हुआ उनके लिए भी। Otherwise, they might experience sickness again and oppression again. नहीं तो क्या फिर से वो बीमार पड़ेंगे या तो सताव में फिर से पड़ेंगे। Yeah. Any other questions? Yes. माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। Cordless mic. Is cordless mic this side? Oh, no battery. Yeah. I don't think this is not long enough. It's not long enough. Brother, you tell. We'll just. From here it will Wait. go. It's not long enough. So, ठीक है, बोलिए। but- Hmm. Hmm. Hmm.
Mm-hmm. Okay, good. So he's asking the thorn in the flesh. It is a demon, but is it from God or is it from Satan? Okay, so we know that Satan is the one who comes to steal, kill, and destroy. हम जानते हैं कि शैतान जो है चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है. So it was Satan who wanted to trouble Paul. ये शैतानी है जो पौलुस को परेशान करना चाह रहा था. So in Paul's case, when this situation happened, basically God did not remove it. तो पौलुस के कार्य में जो है जब इसके साथ ये हो रहा था, परमेश्वर जो है उसको निकाले नहीं. See, God can work together for good in every situation. तो परमेश्वर जो है हर एक परिस्थिति में जो है अच्छाई के लिए काम कर सकते हैं. So Satan did this, शैतान ने किया, God used it. परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल किए. So that's how we would look at this, only this unique situation. तो ये सिर्फ एक ही यही बात में जो है हम इस प्रकार से देख सकते हैं. Is that okay? Okay. Can we please try giving the mic to him, please? Here, This mic. वायर आपके सामने से डालो ना, आपके सामने से डालो, इधर से. हाँ, ऐसे. हाँ, बस. Yeah. It's okay. It's fine. हो गया. Yeah, you can say. Ash. Go ahead. बंद है क्या? आवाज नहीं आ रही. एक्चुअली एक रियल इवेंट है मेरा, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ उससे 2 किलोमीटर दूर है. तो क्या शैतान जान ले सकता है हमारा लाइफ को? हाँ. एक्चुअली क्या हुआ कि उनका घर के मतलब अराउंड 100 मीटर दूर में उन लोग कुछ काम कर रहे थे, ब्रिक्स बना रहे थे. तो वहां पे कुछ गोल्ड का चीज मिला उनको, तो वो गोल्ड का चीज लेकर उन घर पे रख दिए. एक्चुअली शैतान ने वार्निंग भी दिया उनको कि जो उसका सामान है वो लेके वापस वहीं पे रख दे, पर उनके मन में एक लोभ जात हो गया और वो उसको बेच के कुछ ट्रैक्टर वगैरह, मतलब वो 20-30 लाख बेच दिए उस चीज को, स्टिल रखे थे कुछ. तो ऐसा हुआ कि उसका घर में एक 14 जो ये होता है मेमना, ये जो बछड़ी होता है, वो 10 to 14 था, वो सारा मर गया. तो वार्निंग भी दिया. लास्ट में वो भी मर गया, जो लेके गया था वो मर गया. बाद में उनके घर परिवार को, इवन उसके बेटे को भी शैतान ने पकड़ा था. मैं था वहां पे, मतलब सब देख रहा था. वो बोल रहा था कि उसको रख दो, नहीं तो फिर से मैं मतलब पूरा खानदान को ऐसे नष्ट कर दूंगा, इस टाइप का. तो उन रखे नहीं. बाद में कुछ प्रेयर भी किए उन पर, कुछ काम नहीं किया एक्चुअली प्रेयर भी. और वो शैतान बहुत परेशान कर रहा था उनको. बाद में वो लोग तांत्रिक को ले आए, एक 10-12 तांत्रिक आए कहीं से बहुत दूर से, और वो लोग बांध दिए हैं. तो बाद में क्या वो फिर से उनको परेशान कर सकता है या जान ले सकता है उनका? ये मेरा क्वेश्चन. अगर ऐसे उन लोग किया है तो हम कैसे रोक सकते हैं? क्या हम रोक सकते हैं उनको? क्या कास्ट आउट कर सकते हैं completely? Are they believers? हाँ, They are believers. they are believers. Oh. बट वो इतना फेथ नहीं है उनमें. No, not वो much शैतान को भी पूजा कर लेते कभी कभी. Oh. Okay. So he is asking, some incident happened. In that incident, there were some gold scraps near somebody's house. So they took it, they sold it, and they bought whatever they wanted to. But it seems there was some kind of like a curse or something on it, where whoever used it, the demons, they killed, right? That person died, and some animals in their home died, and so many things happened. So his question is that some other people came and they prayed. Prayer didn't work. Okay, then. Okay, some other people came. Okay. Huh.
So can they bind or not? So see, when unbelievers seem to bind, that is not real. It's just it's a lie. So demons can pretend no. So they just behave as if the demons are bound, and again it will come in trouble. So the real way in which it can be cast out is only through the power of Jesus Christ. Yes. So we have to continue to pray, continue to press in. Okay, after break? Yeah, sure. Thank you.